Assalamu alaikum and welcome to a new lecture. When we talk about communication and specifically communication that goes um, within organizational structures and places and in business structures, one thing that stands out is that not always are going to be on a position where we stand as an employee. कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कम्युनिकेशन का सर्कल हमेशा उन चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमे कि हमने लोगों से कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, उनको अपने काम के बारे में बताना है वेदर इट्स बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट या हमने किसी किस्म की डेडलाइन मीट अप करनी है और कोई चीज़ सबमिट करवानी है अपने हेड को, बॉस को। वी कैन बी एट सर्टेन टाइम्स ऑन सच अ सिचुएशन इन अ प्लेस जहाँ पर वी are basically the head or the manager or the boss. And whenever we stand at such positions, one thing that needs a lot of thought and consideration is कि how are we communicating with the people जो हमसे बात करने आ रहे हैं। अब उस चीज़ के इस पहलू के कुछ सिग्निफिकेंट किस्म की सिचुएशंस हैं। एक तो हो गया आपके करंट एम्प्लॉइज जिनसे आप बीइंग द हेड और अ मैनेजर आपने कम्युनिकेट करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर डे टू डे रूटीन वर्क एंड फॉर योर डेली रूटीन टास्क। और उसके बाद people who are not a part of your organization, but they are basically people who are here for an interview. Interviewing skills को भी हम communication का के अंडर डिफाइन करते हैं या उनको हम communication के ही पॉइंट के अंदर हम उनको डिरेल करते हैं. So in this lecture today, we are going to study about some interviewing techniques and how these can be helpful while we are communicating within any kind of an organization on a managerial post and position. The first thing is that you always have to ask um, that person के you have to ask them about themselves. और अगर आप बताने वाले की क्योंकि हम इन दोनों रोल्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इंटरव्यूअर का रोल भी हम स्टडी करेंगे पढ़ेंगे साइड बाय साइड जो यानी इंटरव्यू ले रहा है बीइंग द हेड, और हम इंटरव्यूई का भी रोल पढ़ेंगे यानी जो पर्सन ए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आए. So the one thing that lies out is yes, you always have to be very welcoming. आपको जब बुलाया जाता है अंदर, you have to be very welcoming. You have to ask permission to enter into the room, and whenever you are about to seat up, you have to ask that can I have a seat please. या दूसरा जो भी वहाँ पर interviewer होता है, he usually asks. So um, you have to be very polite in all of these terms. The first question is always that you please can you tell me about yourself, and whenever this question is asked उससे कुछ जो अहम तरीके हैं उसको जवाब देने के, वो ये है that you have to start with your name. आपने बताना है कि आपका नाम क्या है, because obviously बहुत सारे candidates और भी हैं, and it is good to introduce yourself with your name, mannerful लगता है. उसके बाद you have to tell that where do you live? You belong from Multan, you belong from Lahore, or you belong from Islamabad. और एक short से introduction में अपनी education बतानी है जिसमें आप अपनी current degree के बारे में बताएंगे. Then if you have any kind of job experience, if you're still working somewhere, you are supposed to tell that. Obviously, ethically ये आपने बताना है. And if you've left any kind of workplace, तो आपने उसके बारे में भी बताना है that you have left that place. Reason में नहीं जाना कि आपने क्यों छोड़ी, आपने सिर्फ बताना that I have been working there, but now I have left that place. And then family details ensure that what is your status, are you married, are you single, you're living with your parents, or whatever kind of situation you are in. The next important thing is that from the interviewer side, you need to ask that why are you looking for a job change? अब इस क्वेश्चन के आंसर में हमेशा से आपने उन चीजों को अपने आंसर में डालना है जो आपने अपनी पिछली जॉब से लर्न की हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाह रहे हैं उसको कि बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड वर्किंग इन्वायरमेंट आप किसी और जगह को स्विच
करके देखना चाह रहे हैं, या आप अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए स्विच करना चाह रहे हैं, दीज कैन बी वेरी गुड आंसर्स। लेकिन कभी भी इस चीज को हमेशा से अवॉइड करने की कोशिश करें कि आप अपने इंटरव्यू के दौरान अपने जॉब चेंज की रीजन ये दे रहे हो कि बिकॉज आपका वहाँ पिछली वर्क प्लेस पे कोई कन्फ्लिक्ट हो गया था, लिहाजा आप छोड़ कर आए हैं या उन्होंने आपको निकाल दिया है। नेवर गिव दिस काइंड ऑफ रीजन टू देम। सो जितनी भी आप जेनेरिक टर्म्स में बात बयान कर सकते हैं उस तरह से ही करें तो बेहतर है। सिमिलरली आपने अपनी जॉब चेंज की रीजन को अपने करियर गोल से भी रिलेट करना है कि आई वांट कि मेरी नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ हो, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ जिस तरह से यहाँ भी आंसर हमने लिखा हुआ है कि आई वांट टू एनहांस माय स्किल्स, तो इस किस्म की बात कैन बी अ परफेक्ट आंसर एज वेल। Coming to the next question that usually interviewers ask, के please can you tell me about your strengths? तो हमेशा से ऐसी जेनेरिक 3 किस्म की स्ट्रेंथ्स को याद रखना है आपने कि जब भी आपको कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करे तो आपने उसको यही आंसर करना है, सो दैट आपको एक तो वो पेट किस्म की याद भी रह जाए, दूसरा इसलिए भी कि यूजुअली जब हम कोई इस किस्म की बता देते हैं कि भाई आई एम एक्सट्रीमली अ पंक्चुअल पर्सन, अब ये कभी कभी कुछ सिचुएशंस में गलत भी हो सकती है कि हम कभी हो सकता है आते हुए हमें देर हो जाए, हम अपनी उस बात पे पूरे ही नहीं आ रहे, तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम एट दैट पर्सन और एट दैट place which are going to hire you. So always try to learn some kind of generic strengths जो कि आप हर जगह पर कह सकते हैं, हर जगह पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड आई हैव द स्किल ऑफ अडेप्टेशन, which means कि मैं किसी भी environment को adapt कर लेता हूँ। So you can always add some kind of generic statements and generic habits as your strength as well. Coming up to the next thing, that is the weaknesses. Weaknesses basically वो चीजें होती हैं जो आपके negative points के अंदर भी हम उनको categorize कर सकते हैं, यानी interviewer उसको categorize कर सकता है कि अच्छा ये इसका weak point है। लिहाजा इस किस्म के वीक पॉइंट्स बताने हैं जो आपके एक तो मार्क्स में और आपके एक तो इम्प्रेशन को डैमेज ना करते हो। इस किस्म के वीक पॉइंट्स बताने हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्लस पॉइंट्स भी नजर आते हो। जैसे आप कह सकते हैं दैट आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। अब ये एक बुरी आदत भी है, लेकिन ये एक अच्छी आदत भी कंसिडर की जा सकती है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है इसीलिए ये ज्यादा बोलता है। Similarly, you can say कि I trust people very quickly because that is a weakness, because it can damage your own self. Yeah, I am a little sensitive. तो ये इस किस्म की वीकनेसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके प्लस पॉइंट्स भी कंसिडर होती हैं, लेकिन ये वीकनेसेस भी शामिल की जा सकती हैं। सो नेवर टेल देम सच वीक पॉइंट्स जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपका क्रिएट करें। Next, one very basic question and one very prominent question that every interviewer basically asks is that what salary expectance do you have with us? कि आप क्या समझते हैं कि हम आपको क्या पे करेंगे? यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। अगर तो आप एक फ्रेश ग्रेजुएट की फॉर्म में गए हैं इंटरव्यू देने, तो इसका बेस्ट आंसर इज दैट यू फर्स्ट नीड टू योरसेल्फ स्टडी द मार्केट, के मार्केट में इस पोजीशन का जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया, जिसके ऊपर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको क्या सैलरी पे की जा रही है, तो ये नो हाउ, ये नॉलेज लेके जाना है आपने। सिमिलरली इसका बेस्ट आंसर अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है तो ये भी हो सकता है कि एज पर योर कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज एंड द पोस्ट, जो जिसकी ग्रेडिंग जो भी है उस हवाले से आई वुड एक्सपेक्ट दैट सैलरी दैट यू वुड पे मी। द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही काम करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करना चाह रहे हैं, तो ऑलवेज फ्रॉम द सैलरी दैट यू आर टेकिंग और दैट यू हैव बीन टेकिंग ऑन योर पास्ट जॉब, जो आप अपनी पिछली वर्क प्लेस पे सैलरी ले रहे हैं, उससे अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 एड उसके अंदर करके you need to tell a bigger amount than that, because obviously
आफ्टर नेगोशिएशन यू वुड बी कमिंग टू अ लेसर अमाउंट। तो लिहाजा उसके अंदर कुछ एडिशनल ऐड करके अपनी सैलरी आपको बतानी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो बहुत स्टैंड आउट करती है वो ये है कि कभी भी अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी की कोई परफेक्ट फिगर नहीं देनी कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल पे मी 20,000। नेवर से दैट। आपने उसको एक रेंज बतानी है कि आई थिंक दैट यू वुड बी पेइंग मी अराउंड 20 to 30,000। अब ये मैंने एक रेंज दे दी कि 20 to 30, अब वो 21 भी हो सकती है, वो 29 भी हो सकती है। एग्जैक्ट फिगर भी नहीं दिया मैंने, उसको एक ब्रैकेट, एक रेंज ब्रैकेट दे दिया कि इनमें से कुछ यहीं पर ही मेरी कहीं सैलरी लाई करेगी इस फिगर में। लिहाजा कभी भी एक परफेक्ट फिगर नहीं आपने शेयर करनी। नेक्स्ट, करियर गोल्स। Usually an interviewer does not very much happen to ask that question, but अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो the perfect answer is that short term goal is to get a job in your required company, and my long term goal is to be have a respectable position and be very much professionally skilled and developed. लॉन्ग टर्म गोल में ये कह देना कि आई विश टू बी द सीईओ ऑफ योर कंपनी, और एक्सपेक्टेडली अगर जो इंटरव्यूअर बैठा है आपके सामने, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो हिमसेल्फ सीईओ है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो दैट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इमेज एज वेल, क्योंकि वो बंदा सोचेगा कि यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिम ऑफ हिज सीट और उसकी जॉब पर आप आना चाह रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म गोल हमेशा सेल्फ डेवलपमेंटल गोल बताएं। आई वांट टू बी अ वेरी प्रोफेशनली डेवलप्ड पर्सन, और इस तरह से आपने नहीं कहना कि आई वांट टू बी माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। वो एक थ्रेट लगता है कि आप उसको ओपनली थ्रेट करें कि अभी जो आपका मार्केटिंग डायरेक्टर है उसको कुछ अरसे में हम फारिग कर देंगे एंड आई वुड बी ऑन दैट प्लेस, तो इट कैन क्रिएट a नेगेटिव impact as well. The next thing is a very pet question जो कि यूजुअली पूछा भी जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में जब इंटरव्यूअर आप लोगों को सवाल कर रहा हो, that why should I hire you? Sorry, one thing that always should be the answer of this question is कि आपने अपने इस आंसर को अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल गोल्स दोनों को मिक्स एंड मैच करके उसको एक परफेक्ट आंसर देना है। और वो किस तरह से, दैट यू हैव टू टेल कि आप किस तरह से प्रैक्टिकली जितना भी आपने अपने नॉलेज गेन किया, सीखा, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू गेन एक्सपीरियंस एंड अपने प्रोफेशनल स्किल्स का इजहार करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज को एग्जिबिट करना चाहते हैं। ये कह देना कि बिकॉज आई एम द बेस्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्लेम। ये कहना कि क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत है साउंड्स अ लिटिल बैड, और इसके अंदर कोई करेज, इसके अंदर कोई काम करने का जोश और वलवला नहीं जाहिर होता, एनर्जी नहीं जाहिर होती। लिहाजा हमेशा अपने जवाब को अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके आपने बताना है, लाइक दे हैव आंसर्ड इन दिस पैराग्राफ दैट यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। Finally, one thing that an interviewer also asks is that why do you want to work with our company? पहली बात जो इसका जवाब बेसिकली हो सकती है वो ये है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाते हैं, whenever you set for an interview, always go prepared. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए हैं तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करके जाएं, उसके फैक्ट्स, उसके फिगर्स, कि वो काम क्या करते हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, उनका मेन पर्पस क्या है। बाय दैट यू वुड बी नोइंग कि वो कंपनी किस चीज में एक्सेल करती है, वो कंपनी सक्सेसफुल क्यों है, वो कंपनी स्टैंड आउट क्यों करती है, और आप क्यों उसके साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ रीजन। जब भी हम जॉब स्विच करते हैं तो ऑब्वियसली यूजुअली हम बेटर जगह पे स्विच करते हैं,
तो जब हम बेटर जगह पे स्विच करते हैं, मीन्स दैट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में करें वो उससे बेहतर होगी। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि वो किस लिए बेहतर है, गिव दैट रीजन। ऑल्सो गो प्रिपेयर विद ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो भी उस कंपनी के बारे में आपको मिल सकती है। So please go through the lecture and you can let me know for any queries, and please practice all of these questions whenever you see yourself giving an interview. Thank you so much.